Hello students, today we are going to discuss about linear congruences. We have already done what do you mean by a congruence, and now we are going to discuss what is a linear congruence. Linear मतलब डिग्री वन है ना, वन वेरिएबल की डिग्री अगर हमने वेरिएबल की डिग्री वन लें उससे अगर हम कोई इक्वेशन बनाते हैं उसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पे भी अब जो कॉन्ग्रुएंस बनेगी वो एक वेरिएबल की फॉर्म में होगी और उस वेरिएबल की जो डिग्री है वो क्या है, वन। नाउ इफ यू हैव गिवन दिस ए बी एंड एम, दीज ऑल आर इंटीजर्स, ठीक है, देन अ कॉन्ग्रुएंस ऑफ द फॉर्म ax is congruent to b modulo m or ax plus b is congruent to 0 modulo m, then this type of congruence is said to be a linear congruence. Why it is linear? Because the degree of the unknown variable here is 1. Fine. a b m हमें सब पता है इनकी values, they are integers, ठीक है, they are some integers. Like if I write this equation, this congruence 3x is congruent to 2 modulo 5. So a b and m, they are known, they are integers, but x is a variable, ठीक है. So this is a congruence with one variable of degree 1. So it is said to be a linear congruence. Fine. Now what do you mean by solution of a linear congruence? जो x की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी उस वैल्यू को हम क्या कहेंगे, सोल्यूशन ऑफ द लीनियर कॉन्ग्रुएंस. फाइन. सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या है, एन इंटीजर x नॉट इज सेड टू बी इज कॉल्ड अ सोल्यूशन ऑफ द लीनियर कॉन्ग्रुएंस इफ ax इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m को x नॉट क्या करता है, सेटिस्फाई, इफ इट सेटिस्फाइज द कॉन्ग्रुएंस. अगर ये x नॉट इस कॉन्ग्रुएंस को सेटिस्फाई करता है then we say that this x naught is a solution of this linear congruence. Fine. Now let's do some theorem. x naught अगर किसी भी linear congruence का solution है, if x naught is solution of a linear congruence ax is congruent to b modulo m, then if x1 is any other integer which satisfy the condition that x1 is congruent to x naught modulo m. अगर x1 एक ऐसा इंटीजर है जो x naught के congruent है modulo m, then that is also the solution of this linear congruence. मतलब क्या हुआ इस चीज का, पहले प्रूफ बाद में करेंगे. फर्स्ट यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस रिजल्ट. ये क्या कह रहा है कि अगर x naught कोई भी सोल्यूशन है किसी लीनियर कॉन्ग्रुएंस का, देन वो सारे नंबर्स जो इस x नॉट के कॉन्ग्रुएंट होंगे मॉडुलो m, दोज आर आल्सो सॉल्यूशंस ऑफ दिस लीनियर कॉन्ग्रुएंस. ठीक है, वो नंबर्स जो किसी भी लीनियर कॉन्ग्रुएंस के एक सोल्यूशन के कॉन्ग्रुएंट है मॉडुलो m, वो भी उसी लीनियर कॉन्ग्रुएंस के क्या होंगे, सारे के सारे सॉल्यूशंस होंगे. फाइन. Now first we prove this result. How will you prove it? हमें क्या given है, x naught is solution of this linear congruence. मतलब x naught इस congruence को क्या करेगा, satisfy. ठीक है. अब x1 हमें given है, it is congruent to x naught modulo m. और मैं किसी भी congruence को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ. इसका मतलब अगर मैं इस इक्वेशन को a से मल्टीप्लाई कर दूँ तो इट मीन्स x1 इज कॉन्ग्रुएंट टू ax नॉट मॉडुलो m. फाइन. नाउ यू हैव टू कॉन्ग्रुएंसेस, वन इज दिस, सेकंड इज दिस, एंड यू हैव डन दिस रिजल्ट इफ a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m and b is congruent to some c modulo m, then a and c are also congruent to each other modulo m. So from here what you get, ax1 is congruent to ax naught modulo m and ax naught is congruent to b modulo m. इसका मतलब क्या हुआ, ax1 is also congruent to b modulo m. ये नंबर और ये नंबर दोनों सेम नंबर के कॉन्ग्रुएंट, ax1 and b, both the numbers are congruent to same number, that is ax naught. Therefore these two numbers are also congruent to each other. Fine. So we can write ax1 is congruent to b modulo m.
और अगर ax1 b के कॉन्ग्रुएंट है मॉडुलो m, इसका मतलब क्या हुआ, x1 satisfies the linear congruence। कौन सी लीनियर कॉन्ग्रुएंस को सेटिस्फाई कर दिया ये, ax is congruent to b मॉडुलो m। और अगर कोई नंबर इस कॉन्ग्रुएंस को सेटिस्फाई करता है then that is said to be solution of the linear congruence। So it means x1 is also solution of the linear congruence। ठीक है, अब ये x1 है किस टाइप का नंबर, हमने क्या कहा था कि x1 जो हमें प्रूव करना था वो तो प्रूव हो गया, बट नाउ वी लर्न समथिंग मोर अबाउट फ्रॉम हियर। We have this x1 is congruent to x0 modulo m. This implies m divides x1 minus x0, or you can write x1 minus x0 is multiple of m. So there exists some integer q such that I can write x1 minus x0 as m into q. So what this implies, x1 किस टाइप का नंबर है, that is x0 plus mq। इट मीन्स अगर आपको किसी कॉन्ग्रुएंस का एक सोल्यूशन पता लग जाता है x0, then you can find many solution of that linear congruence। और वो किस टाइप के होंगे, x0 plus m into something। जितने भी आप मर्जी q की वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हो, you have infinitely many solutions of this linear congruence। मतलब अगर किसी कॉन्ग्रुएंस का एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे, बट यहाँ से ये पता लगा कि वो सारे इनफाइनाइटली मेनी जो सॉल्यूशंस आए दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। तो जब हम कॉन्ग्रुएंसेस को डील करते हैं तो वो नंबर्स जो आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं वो सारे अलग अलग नंबर्स तो होंगे जो इस कॉन्ग्रुएंस को सेटिस्फाई करेंगे, बट they are congruent to each other, therefore we deal those numbers as one। उनको एक ही तरह से डील करते हैं, वो एक ही सोल्यूशन माना जाता है, हम उनको एक ही सोल्यूशन मानते हैं। इसलिए हम कॉन्ग्रुएंस के वो सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं जो आपस में कॉन्ग्रुएंट ना हो, उनको अलग अलग मानते हैं। बाकी सारे सोल्यूशंस क्या होते हैं, सेम माने जाते हैं। मतलब अगर कोई नंबर x0 के कॉन्ग्रुएंट है मॉडुलो m और x0 इसका सोल्यूशन है तो x1 और x0 दो सोल्यूशन तो हुए उसके, बट दे आर कॉन्ग्रुएंट सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन मॉडुलो m। ठीक है, और हमें सिर्फ वो नंबर्स निकालने होते हैं जो इस इक्वेशन के सोल्यूशन भी हो और आपस में कॉन्ग्रुएंट ना हो, और जो आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हम उन्हीं को डिफरेंट सोल्यूशंस की तरह ट्रीट करते हैं। जो आपस में नंबर्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं सोल्यूशन के उनको हम सिंगल सोल्यूशन की तरह ट्रीट करते हैं इन केस ऑफ कॉन्ग्रुएंसेस। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी। हो सकता है 3 भी आपका सोल्यूशन हो सकता है 5 भी इक्वेशन का सोल्यूशन हो, बट मॉडुलो 2 मान लेते हैं, मैं जैसे एग्जांपल दे रही हूँ। बट दीज टू नंबर्स आर कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो 2, और मॉडुलो 2 में ही हम बात कर रहे हैं मॉडुलो m जो है, m हमारा अगर 2 है तो इन दोनों सोल्यूशंस को हम एक सोल्यूशन मानेंगे बिकॉज दे आर नॉट इनकॉन्ग्रुएंट, दे आर कॉन्ग्रुएंट। जो आपस में कॉन्ग्रुएंट ना हो वो डिफरेंट सोल्यूशन ट्रीट करते हैं हमें कॉन्ग्रुएंसेस में। जो आपस में कॉन्ग्रुएंट है उनको हम एक ही सोल्यूशन मान के चलें। ठीक है, सो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। फाइन, अब हमें ये तो पता लग गया कि अगर एक नंबर एक सोल्यूशन है इक्वेशन का तो उसके कॉन्ग्रुएंट जितने भी नंबर आएंगे वो भी उस इक्वेशन के सॉल्यूशंस होंगे, है ना। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम हियर। सपोज इस इक्वेशन का कोई एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है, इसी चीज को मैं इस एग्जांपल से और क्लियर करती हूँ। इस इक्वेशन का कोई एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, कैन यू फाइंड आउट वन सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन? यस, if I substitute x is equals to 4, then what will you get? It is 12 which is congruent to 5 modulo 7। अगर मैं x को 4 पुट करती हूँ तो ये कितना आया? 12 is congruent to 5 modulo 7। It is true because 12 minus 5 is 7 which is divisible by 7। So हमें एक सोल्यूशन मिल गया 4। तो अगर मुझे इस इक्वेशन के बाकी सोल्यूशंस निकालने हैं तो वो कौन से होंगे? वो नंबर्स जो कॉन्ग्रुएंट होंगे मॉडुलो
कॉन्ग्रुएंट होंगे 4 के मॉडुलो 7। उन सारे सॉल्यूशंस को मैं एक ही सॉल्यूशन कंसिडर करूंगी इस इक्वेशन का। बट अगर इस नंबर के अलावा एक ऐसा नंबर मिल जाता है जो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन भी हो बट 4 के कॉन्ग्रुएंट ना हो मॉडुलो 7, then that will be the different solution of this linear congruence। ठीक है, अब इस केस में हम बाकी सॉल्यूशंस जो इसके कॉन्ग्रुएंट हैं 4 के, उनको हम कैसे लिख सकते हैं? दे आर नथिंग बट 4 प्लस 7। These are all solutions for any value of k. These all solutions are congruent to each other। ठीक है, and they all will be treated as one solution for this equation, this congruence। ठीक है, not equation, this is the congruence, fine। बट अगर कोई नंबर हमें ऐसा मिल जाता है जो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन भी हो और 4 के कॉन्ग्रुएंट ना हो मॉडुलो 7, दैट इज एन इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। और ये सारे क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस ऑफ दिस कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज how can you find out the solution of the linear congruence? किसी भी linear congruence का solution निकालने के लिए हमें क्या करना है? अगर हमें इस इक्वेशन का सॉल्यूशन चाहिए, सपोज ax is congruent to b modulo m, then this result says कि वो नंबर्स जो 0 से m-1 के बीच में लाई करते हैं, उन्हीं में से कोई ना कोई नंबर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा अगर इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो। If solution of this equation exists, then it is one of the numbers lies between 0 to m-1। बाकी सारे नंबर्स जो हैं वो इसी नंबर के क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो m। मतलब अगर मुझे किसी कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन निकालना है तो मैं कौन से नंबर्स चेक करूंगी? सिर्फ वो नंबर्स जो 0 से m-1 के बीच में लाई करते हैं। अगर उनमें से कोई इस वैल्यू को सेटिस्फाई कर गया, इस कॉन्ग्रुएंस को सेटिस्फाई कर गया, तो एक सोल्यूशन मिल गया हमें, या जितने सेटिस्फाई करेंगे वो सोल्यूशन मिल गया हमें। और उनके फिर बाकी कॉन्ग्रुएंट नंबर हम निकाल सकते हैं जो इस इक्वेशन के क्या होंगे? इस कॉन्ग्रुएंस के क्या होंगे? सोल्यूशन। ठीक है, सो लेट्स प्रूव इट कि व्हाई वी आर वर्किंग ऑन दिस ओनली। ठीक है, सपोज मान लेते हैं लेट y बी एनी नंबर की जगह वी कैन से एनी सोल्यूशन ऑफ दिस कॉन्ग्रुएंस। y is any solution of this congruence। कौन सी congruence? ax is congruent to b modulo m। इसका मतलब y इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई। अब मैं y को m से डिवाइड कर देती हूँ, तो आई विल गेट सम क्वोशिएंट एंड सम रिमाइंडर, वेयर दिस रिमाइंडर ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to m-1, है ना? तो y minus r is equal to m क्यों? इसका मतलब क्या हुआ? y minus r is equal to m cube means m divides y minus r, or you can write y is congruent to r modulo m। अब हमने पिछले क्वेश्चन में क्या कहा था? अभी वो नंबर्स जो इस इक्वेशन, इस कॉन्ग्रुएंस के सॉल्यूशन है, उनके कॉन्ग्रुएंट जितने भी नंबर्स होंगे मॉडुलो m, वो भी इस इक्वेशन के क्या होंगे? सॉल्यूशन। इसका मतलब अगर कोई भी नंबर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम एक r वैल्यू ऐसी निकाल सकते हैं जो 0 से m-1 के बीच में लाई करेगी और वो इस इक्वेशन का क्या बनेगी? सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका मतलब इस कॉन्ग्रुएंस के सॉल्यूशन निकालने के लिए वी नीड टू फाइंड आउट वर्क ऑन ऑल द इंटीजर्स। हमें सिर्फ कौन सी इंटीजर्स पे वर्कआउट करना चाहिए? इंटीजर्स व्हिच लाइज बिटवीन 0 to m-1। कोई भी इंटीजर अगर इस इक्वेशन का, इस कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन है, तो वो इंटीजर किसी ना किसी नंबर के व्हिच लाइज बिटवीन 0 to m-1 के क्या होगी? कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो m। तो इसका मतलब वो नंबर भी इस इक्वेशन का क्या होगा? सॉल्यूशन। फाइन, और हमें यही कहना था यहाँ पे कि कोई ना कोई नंबर हमें 0 से m-1 के बीच में मिलेगा जो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, और बाकी सारे नंबर्स उस नंबर के क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो m। फाइन, एक नहीं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, वो हम क्वेश्चन से देखेंगे कि कितने कितने आते हैं सॉल्यूशंस। ठीक है, सो यू मस्ट नो कि हमें पहले सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए किस चीज के ऊपर वर्कआउट करना है।
Like you have this example, 2x is congruent to 1 modulo 4. अगर मुझे इस इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना है तो मैं क्या करूंगी, मुझे वो नंबर्स चेक करने हैं जो 0 से लेकर, मॉडुलो किसके निकाल रहे हैं हम, 4, वो नंबर्स जो 0 से लेकर 4 के बीच में लाई करते हैं, इवन 4 से लेसर देन, है ना, रिमाइंडर्स आर ऑलवेज लेस देन n। तो इसका मतलब मैं r की वैल्यू कौन कौन सी लूंगी, 0, r is 1, r is 2 and r is equals to 3। मुझे इन चारों नंबर्स के लिए चेक करना है कि ये इस इक्वेशन में से किसी कोई नंबर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं। पहले 0 पुट करें, क्या ये कॉन्ग्रुएंस होल्ड करती है, 2 into 0 is 0, 0 minus 1 is not divisible by 4, so it means ये 0 इसको सेटिस्फाई नहीं करता। Now if I put x is equals to 1, तो it is 2 minus 1, 2 is congruent to 1 modulo 4 है, नहीं है, क्यों, क्योंकि 4 does not divide 2 minus 1, है ना। फिर x की वैल्यू 2 पुट करो, क्या ये कॉन्ग्रुएंस होल्ड करती है, नो, वाई, बिकॉज 2 into 2 is 4, 4 minus 1 को क्या 4 डिवाइड करता है, नहीं करता। अब हम पुट करते हैं r is equals to x is equals to 3, दिस इज 3 2 6, 6 minus 1, it means 4 does not divide 6 minus 1 also, it means इस इक्वेशन का, इस कॉन्ग्रुएंस का कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि हमें पता है कि अगर कोई सोल्यूशन होगा तो पहले वो इनमें से कोई होगा, फिर इनके बाकी कॉन्ग्रुएंट आएंगे सॉल्यूशंस, ठीक है। बट इनमें से कोई भी नंबर इस कॉन्ग्रुएंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इट मींस दिस कॉन्ग्रुएंस हैज नो सॉल्यूशन, फाइन। अब हमने एक क्वेश्चन पहले ऊपर किया था, उसको भी चेक करें, एक तो हमने उसमें निकाल ही लिया था x is equals to 4, है ना। बट नाउ कैन वी चेक कि बाकी नंबर्स में से कौन कौन से इसको सेटिस्फाई करते हैं। हमें पहले तो चेक कौन कौन से करने हैं, रिमाइंडर्स विच लाइज बिटवीन 0 to 6, तो हम r की वैल्यूज लिख लेते हैं, हमें कौन कौन सी इसमें पुट करके चेक करनी है। इंस्टेड ऑफ r जस्ट मैं रिमाइंडर फॉर्म में कह रही हूँ, बट वैल्यू हम किसकी पुट कर रहे हैं, x की, तो it's better if we'll write x is equals to 0, x is equals to 1, x is equals to 2, x is equals to 3, x is equals to 4 we have already checked, it satisfies this equation, then congruence, then x is equals to 5, then x is equals to 6। 0 put करें तो 3 into 0 is congruent to 5 modulo 0, no, because 3 into 0 is 0 and you know that 7 does not divide minus 5, है ना। नेक्स्ट 1 को चेक करते हैं, 3 into 1 is 1, 1 minus 5 is minus 2, which is not divisible by 7, fine, you can check this, ये possible नहीं। 3 into 2 is 6, 6 भी minus 5 करोगे तो 1 आ गया, 7 does not divide 1, now 3 into 3 is 9, 9 minus 5 is 4, which is again not divisible by 7, ठीक है। now next is 3 into 4 is 12, 12 minus 5 is divisible by 7, so this 4 satisfies this congruence। now x is equals to 5 put करें तो क्या आएगा, this means 3 into 5 is congruent to 5 modulo 7, is it possible, no, because it is 15 minus 5, which means 10, and 7 does not divide 10। now 3 into 6 is 18, 18 minus 5 is 13, 13 भी 7 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब कि सिर्फ 4 ही एक ऐसा सोल्यूशन है जो इस कॉन्ग्रुएंस को क्या करता है, सेटिस्फाई, और बाकी जितने भी नंबर्स 4 के कॉन्ग्रुएंट होंगे वो भी इसके सोल्यूशन होंगे, बट दे ऑल आर कॉन्ग्रुएंट टू 4। सो हाउ मेनी इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस आर देयर, कितने इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस आए इस इक्वेशंस के, ओनली वन इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन इज देयर, बाकी सारे कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। और हम किससे डील करेंगे, हमें इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस निकालने हैं किसी भी कॉन्ग्रुएंस के, राइट। लेट्स डू वन मोर एग्जांपल, that is 2x is congruent to 6 modulo 4। in this case again what we have to substitute, हमें x की वैल्यूज जो 4 रिमाइंडर्स आएंगे 4 से डिवाइड करने के बाद वही सब्स्टिट्यूट करके चेक करना है। x is equals to 1, x is equals to 2, x is equals to
3. If I substitute x is equals to 0, then what I will get? It is this congruence, which means 2 into 0 is 0. It means 4 divides 0 minus 6. It is not possible. It means this congruence does not hold. 2 into 1 is 2 is congruent to, ये तो hold नहीं करती ना. Is this 4? Yes. Why? Because 4 divides 2 minus 6. 2 minus 6 is minus 4 और 4 इसको divide करता है. Now this is 2 into 2 is congruent to 6 modulo 4. क्या ये equation को satisfy करता है? नहीं करता, because 4 minus 6 is minus 2 and 4 does not divide minus 2. Now next is 2 into 3 is congruent to 6 modulo 4. Yes. Because it is 4 divides 6 minus 6. 0 को हर number divide करता है. Therefore, this is also a solution. So now in this case, we have found two solutions. One is x is equals to 1 and 3. And you can see one is not congruent to 3 modulo 4. 1 और 3 आपस में congruent नहीं है modulo 4. So these two are incongruent solutions. Incongruent solutions of the congruence 2x is congruent to 6 modulo 4. So from the three examples, what we have learned, किसी भी congruence का हो सकता है कोई भी solution exist ना करे, हो सकता है एक unique incongruent solution exist करे, और हो सकता है more than one incongruent solutions exist करें. अब ये किस पे डिपेंड करता है कि कितने इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस होंगे. इतना तो हमने देख लिया कि कॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस तो अगर एक सॉल्यूशन है तो इनफाइनाइटली मिल जाते हैं, बट इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन कितने होंगे उसके लिए आपके पास कुछ रिजल्ट्स हैं जो हम यूज करेंगे. फाइन. इवन दिस मेथड जो हम अभी कर रहे हैं, इसमें हम सारे रिमाइंडर्स को पुट करके चेक कर रहे हैं जो पॉसिबल रिमाइंडर्स होते हैं. तो अगर ये नंबर जो हमारा m है, इट इज अ वेरी लार्ज नंबर, then the number of congruence values जो हमें चेक करने पड़ेंगी वो भी बहुत सारी हो जाएंगी. तो it is all again a tedious work to check for all, है ना. तो इसलिए उसमें टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत होगा. फिर congruences का फायदा क्या होगा. So we have some results जिनको यूज करके हम इन कैलकुलेशन को भी इजी करेंगे. हमें ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम किसी और तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. बट इन द बिगनिंग, टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स, यू विल सॉल्व द प्रॉब्लम्स लाइक दिस. Okay, let's do some more theorems based on this. So first result in this is the linear congruence AX is congruent to B modulo M has a solution if and only if GCD of A and M divides B. क्या कहा हमने, अगर आपके पास एक linear congruence है AX is congruent to B modulo M, कहता है इस congruence का solution exist करेगा अगर A और M का GCD B को क्या करता है, डिवाइड. और अगर A और M का GCD B को डिवाइड करता है तो इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा. अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो इन दोनों का GCD B को डिवाइड करेगा ही करेगा. इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है, मींस यू हैव टू प्रूव बोथ. फाइन. सो लेट्स स्टार्ट द प्रूफ. First, we consider that GCD of A and M is equal to D, and we are considering that D divides B. Then we have to prove there exists a solution of the congruence AX is congruent to B modulo M. Okay? How will you find out? Now what is given to you? That GCD of A and M is D, it means there exists some number. X already use हो रहा है, so we'll not use X. M already use हो रहा है, तो हम MN भी नहीं use करते, कुछ और numbers use करते हैं. Suppose U and V integers exist करती हैं such that AU plus MV equal to D. हम GCD को correspondingly linear combination of A and M लिख सकते हैं. लीनियर कॉम्बिनेशन लिखने के लिए हमने दो इंटीजर्स यूज करनी होती हैं. सो देयर एग्जिस्ट सम इंटीजर u and v such that au plus mv is equals to d. ठीक है. अब हमें पता है d divides p. This implies b can be written as d into some number. So I multiply this equation
बाय सी, क्या आएगा, ए सी यू प्लस एम सी बी इज इक्वल्स टू डी इंटू सी। ठीक है, सो व्हाट इज डी इंटू सी, इट इज नथिंग बट बी, सो इट मीन्स ए सी यू माइनस बी इज इक्वल्स टू m टाइम्स माइनस ऑफ सी बी। लिख सकते हैं हम इस तरह से, b को इधर ले गए और m वाली टर्म को उस साइड ले। सो व्हाट इट मीन्स, दिस मीन्स दिस नंबर इज रिटन एज m into something. It means m divides a times cu minus b. So which implies the first number is congruent to second number modulo m. अगर m किसी दो नंबर्स के डिफरेंस को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब फर्स्ट नंबर कॉन्ग्रुएंट टू सेकंड नंबर मॉडुलो m. सो इट मींस दिस c into u satisfy the linear congruence ax is congruent to b modulo m. एक रीजन मिल गया हमें जो इस कॉन्ग्रुएंस को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई. सो व्हाट इट मींस, दिस कॉन्ग्रुएंस हैज अ solution. So what we get, that this congruence ax is congruent to b modulo m as a solution. Now the converse part, और converse में हमें क्या प्रूव करना है, अगर इस इक्वेशन का, इस कॉन्ग्रुएंस का एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है then GCD of this a and m must divide b. मान लेते हैं इस कॉन्ग्रुएंस का एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है and that solution is x naught. इसका मतलब क्या हुआ, m divides ax naught minus b. ठीक है, एंड लेट GCD of a and m is d. इसका मतलब क्या हुआ, d divides a और a can be written as d into some q1. d divides m also, इसका मतलब m can be written as d into some q2. राइट, और यहाँ से क्या आएगा, a x naught minus b can be written as multiple of some m. ठीक है, अब हम यहाँ पर a और m की वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या आ जाएगा, d into q1 x naught minus b is equals to d into q2 into q. अब b को एक साइड कर लो और बाकी d वाली टर्म्स एक साइड कर लो. So what we get, this is d times q1 x naught minus d times q2 q equal to b. So from here we can take d common. So what we get, d times q1 x naught minus q2 q is equals to b. So d into something is equals to b. So this implies that d divides b. और हमें ये भी प्रूफ करना था, है ना. So it means अगर मुझे किसी भी इक्वेशन का सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं, किसी भी कॉन्ग्रुएंस का सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, ये चेक करना है. तो मैं कैसे चेक कर सकती हूँ, मुझे सिर्फ ये चेक करना है कि क्या इस x के कोफिशिएंट और जिस नंबर के हम मॉडुलो ले रहे हैं, इन दोनों नंबर्स का जो GCD आ रहा है, क्या वो इस नंबर को डिवाइड करता है या नहीं. ठीक है, अगर करता है तो इस इक्वेशन का, इस कॉन्ग्रुएंस का सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस का कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा. ठीक है, कई बार आपके पास कॉन्ग्रुएंसेस, लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस इस फॉर्म में लिखी होती है ना, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी यही चीज करेंगे. वी कैन राइट इट एज लाइक दिस. और अगर हम प्लस बी या माइनस बी की डिवीजन की बात करें तो जो नंबर्स बी को डिवाइड करते हैं वो उसके नेगेटिव्स को भी डिवाइड करते हैं. सो रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर x कोफिशिएंट और जिस नंबर के आप मॉडुलो ले रहे हो, इन दोनों नंबर्स का GCD इस कांस्टेंट नंबर को डिवाइड करता है व्हिच इज विदाउट वेरिएबल, देन द कॉन्ग्रुएंस हैज अ सॉल्यूशन, अदरवाइज नॉट. Right? So let's do some examples. First example is 135x is congruent to 6 modulo 10. क्या इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस का सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं. हमें क्या चेक करना है, क्या 135 which is the coefficient of x and इस नंबर के हम मॉडुलो ले रहे हैं, इन दोनों का जो GCD है वो इस नंबर को क्या करना चाहिए, डिवाइड. सो फर्स्ट वी फाइंड आउट द GCD of these two numbers. You can easily find out its GCD. I am just writing here. You can check the GCD of these two numbers is 5. And we all know that 5 does not divide 6. इसका मतलब इस कॉन्ग्रुएंस का कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा. राइट, अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता तो हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है. ठीक है,
नाउ नेक्स्ट पार्ट इज 51x इज कॉन्ग्रुएंट टू 32 मॉडुलो 7. क्या इसमें x के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म 7, इन दोनों का जीसीडी क्या है? पहले तो 1 है ना, ये आप चेक कर लेना, इन दोनों का जीसीडी क्या आएगा? 1. अब 1 क्या 32 को डिवाइड करता है? यस, इसका मतलब इस कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है. So using this result, we can just find out whether the solution of this linear congruence exists or not. ठीक है, अब solutions निकालने भी हैं, but उससे पहले we will do some more theorems, then we will do the questions. Okay. Now the next result is in a linear congruence, AX is congruent to B modulo M. If GCD of A with M equal to 1, then it has a unique incongruent solution modulo M. पिछले रिजल्ट में हमने कहा अगर इन दोनों नंबर्स का जीसीडी A और M का जीसीडी इसको डिवाइड करता है तो इस इक्वेशन, इस कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है. अब हम कह रहे हैं कि अगर इन दोनों का जीसीडी 1 है तो ऑब्वियसली 1 तो इसको डिवाइड करेगा ही करेगा. तब इस कॉन्ग्रुएंस के नंबर ऑफ इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन कितने होंगे? यूनिक होगा, मतलब एक ही होगा. एक का मतलब जितना इसका जीसीडी है. अगर इन दोनों का जीसीडी 1 है तो इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस का एक ही इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा. पिछली थ्योरम ने सिर्फ इतना बताया कि इस कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा अगर ए और एम का जीसीडी बी को डिवाइड करता है. ये कहता है कि डिवाइड तो करता है और जितनी वैल्यू डिवाइड जीसीडी जो है हमारे पास, अगर जीसीडी 1 है तो इस कॉन्ग्रुएंस का जो नंबर ऑफ इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन आएंगे वो भी कितने आएंगे? एक ही आएगा. ठीक है. हाउ विल यू प्रूव इट? पहली बात हमें ये प्रूव करना है कि एक सॉल्यूशन इनकॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो फर्स्ट यू हैव टू से कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है और फिर उस सॉल्यूशन को हमने यूनिक शो करना है. ठीक है. तो अब पहली एग्जिस्टेंस तो डायरेक्टली पिछली थ्योरम से ही आ जाएगी. कैसे? हमने क्या कहा कि AX is congruent to B modulo M and it is given to you that GCD of A and M is 1. And we all know that 1 divides every number, so 1 also divides B. This implies from your previous theorem that this congruence has a solution. इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा. अब कितने करेंगे इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन वो हमें चेक करना. सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो हम मान लेते हैं लेट x1 and x0 are two solutions of AX is congruent to B modulo M. इसका मतलब क्या हुआ? x0 B इस कॉन्ग्रुएंस को सेटिस्फाई कर रहा है ना, और x1 भी सेटिस्फाई कर रहा है. तो हम दोनों को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. AX0 also satisfies this linear congruence. Right? अब B जो है वो AX1 के भी कॉन्ग्रुएंट है, B जो है वो AX0 के भी कॉन्ग्रुएंट है. एक ही नंबर दो डिफरेंट नंबर्स के कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब वो दोनों नंबर्स भी आपस में क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट. अब A का जीसीडी M के साथ 1 है तो हम एक रिजल्ट किया था कि कॉन्ग्रुएंस में हम कैसे नंबर्स को कैंसिल आउट कर सकते हैं? जिनका जीसीडी इस नंबर के साथ क्या हो? 1. तो A का जीसीडी इस नंबर के साथ 1 है, इट मींस इट कैन बी कैंसिल आउट. सो व्हाट वी गेट? x1 इज कॉन्ग्रुएंट टू x0 मॉडुलो M. इसका मतलब हमने जो दो सॉल्यूशन लिए वो दोनों सॉल्यूशंस आपस में क्या आ गए? कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो M. तो नंबर ऑफ इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन कितने हुए? एक ही हुआ ना. ठीक है. जितने भी सॉल्यूशंस आ रहे हैं यहाँ पे वो सारे एक दूसरे के क्या हो रहे हैं? कॉन्ग्रुएंट. इट मींस नंबर ऑफ इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस आर 1. एक ही इनकॉन्ग्रुएंट क्या होगा हमारे पास? सॉल्यूशन. एंड दिस यू हैव टू प्रूव. फाइन. So this is all about today's lecture. Thank you very much.